Sports is very important. Sports not only teach us discipline, perseverance, it not only builds character, not only builds health, but it teaches us that every success comes from hard work, discipline, perseverance, and there is no shortcut. You have to work hard, and this thing you have to apply in all other fields. And today, the society is facing a lot of problems like drug, unemployment, and lack of discipline among youths, among the students also, and serious damage and erosion of moral values. At this hour, it is sports which can shield our youths, which can build and nurture their character. So I'm very happy that all of you are participating here. And as Madam was telling me, last year, I think more than 400 youths had come. It shows that our youths are now gearing up for better future. So I want to tell you that, like Agu was telling about D. I have always been telling about 7 H's in life. Number 1 is health. And sport is very important for health. Without sports, it is very difficult to maintain health. And in this world, nothing is more important than health. शान और शोहरत, धन और दौलत, क्या काम का आपके पास अगर स्वास्थ्य नहीं है तो? कोई इज्जत भी नहीं करेंगे कल अगर मरने वाले हैं तो. लोग आजकल बहुत सेल्फिश हो गए. And also, there is no guarantee that you will get second life or third life. This is the only life that we are very sure. So if you want to live long, you have to ensure that you have a very good health. It is only your body which will carry your life. Or we can say, your life lives only in your body. As long as you are healthy, as long as you are fit, your body will carry your life. Otherwise not. We have seen many rich people, ultra rich people, who have died, even in our state, died at very young age because they forgot to maintain health and fitness. So give 99.99% to your health. Priority to your health, and rest to your family, friends, job, relatives, children, career. Because without health, all these are meaningless. And without health, you cannot study well, you cannot serve the society or the department, or you even cannot take care of your old parents, or you cannot take care of your children or your wife or your husband. So top priority is health. Always give importance to health. And this is where sports is very important. Because playing sports and games, sweating keeps you healthy and fit. So, for example, I also always play badminton nowadays, or futsal. Not to become champion, but to keep myself fit and healthy and strong. Sports is not just for medals and certificates. Medals and certificates are important, but not as important as your life and health. And second age is hard work. Hard work is another very important thing, because with a good health and a fit body, that means you have a strong machine
which can work. So second is hard work, which again depend on your fitness and health. And fitness and health obviously comes from your sports, games, exercise, dieting also. And obviously staying away from harmful items like drugs and tobacco, too much of alcohol, too much of red meat, and also keep your stomach empty and don't eat too much. You should not eat beyond 80% of your capacity, always. And let me tell you, there are living things which can survive without food for 20 years. Some crocodiles, they can stay alive without food for 2 years. Frogs and snakes hibernate for 6 months. So I tell my human beings, fellow human beings, let us evolve further. Instead of eating daily, 3 times daily, let us make it 1 time meal a day, and let us evolve further, 1 meal a week, and then evolve further, 1 meal a month. We must evolve forward. Instead of eating too much unnecessarily. And today, people are dying not because of hunger, but because of too much of eating, too much of drinking, too much of alcohol, too much of drugs. When in some parts of the world, like Africa, many are dying without food, without water, we are wasting food. Sometimes in the dinner party. So I tell them, I tell my friends who waste food items and water, this is a sin. This is a sin. God will not forgive you. When others are dying and you are wasting food, not prepared by you, not produced by you, but produced by somebody else, and you are wasting it, God will not forgive you. So please keep in mind, eat less, work more. In a Read Paul Pleaser, there was a question कि आपके पास 2 हाथ क्यों है और 1 मुंह क्यों है? उसका सही जवाब था कि आप ज्यादा मेहनत करना है, 2 हाथ है, दूसरों के लिए भी मेहनत करना है, दूसरों के लिए भी कमाना है। 1 मुंह इसलिए है कि आप जितना भी आप कमाते हैं, जितने भी आप काम करते हैं, उसका आधा जो है दूसरों के लिए करना है। इसलिए आपको सिर्फ 2 मुंह नहीं दिया। 2 मुंह देते तो यहां से भी लगा लेते, यहां से भी लगा लेते लेकिन 2 हाथ दिया, ये है। इसलिए हेल्थ को मेंटेन कीजिए, बिल्कुल ड्रग्स नहीं लेना है। तो बाद में ड्रग्स पर मैं थोड़ा बात करूंगा। उसके बाद हार्ड वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई हैव टोल्ड यू सेकंड एज इज हार्ड वर्क, एंड हार्ड वर्क also you should work smartly. And I believe if you want to win the God's love and kindness, it is only through hard work, not through your monkey type of acting, like prayer, fasting, puja path. I don't think a true God will be happy with your fasting, prayer, offerings of gold, money, sweet, sona, chandi. No. God is not touched by these kind of things. God will be happy if and only if you work hard. तो मैं स्टूडेंट को बोलता हूं, इतना मेहनत करके देखो, इतना मेहनत करके देखो, मतलब सिर्फ 1-2 साल नहीं, 5-6 years, इतना मेहनत करके देखो कि अगर आप क्लास में टॉपर ना आए, एग्जाम में टॉपर ना आए, भगवान को रोना आ जाए और भगवान इतना दुख हो कि वो 1 महीना तक खाना ना खा के बीते, इतना आप मेहनत करको, then you see whether you find success or not. उसके बाद, as Agu was telling, it is very difficult for any government to provide jobs to all educated people, even to all graduate people. Impossible.
फिर हमारे यूथ तो यहाँ चिल्लाते हैं अनएम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड। अरे अनएम्प्लॉयड कहाँ है? वी आर लुकिंग फॉर गुड वर्कर्स। हम तो ढूंढते रहते हैं हमारा अच्छा मिस्त्री सही है, नहीं मिलता है। अच्छा ये प्लम्बर सही है, नहीं मिलता है। अच्छा पेंटर सही है, नहीं मिलता है। अच्छा इलेक्ट्रिशियन सही है, नहीं मिलता है। तो कहाँ हो आप लोग जो अनएम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड बोलते हैं? मैं अपना ट्रैवल यूथ को, स्पेशली अरुणाचल के ट्रैवल यूथ को, लास्ट टाइम भी एक बार मैंने वहां पे लॉ एंड ऑर्डर में यही एड्रेस किया था। यहाँ जितने भी घर बना रहे हैं बाहर के मियाँ मुसलमान लोग बना रहे हैं, यहाँ आप देखिए हर एक का जो अपना चाहे वो वेदर इट इज योर प्राइवेट बिल्डिंग्स, प्राइवेट हाउसेस और गवर्नमेंट बिल्डिंग्स और गवर्नमेंट रोड्स, bridges, all are constructed by outsiders. Contractor may be our tribal. The land owner, the building owner may be our tribals. Why? Because our youths lack that capacity to work hard. हमारे यूथ क्या करते हैं? दुकान बेचने से भी वो 8 hours नहीं बेच सकते कंटिन्यूस, क्योंकि उसको कोई दोस्त बुलाएगा तो वो चले जाएंगे, बर्थडे में बुलाएंगे वहां चले जाएंगे, निदा है बोलने से चले जाएंगे, दोस्त का साथ थोड़ा सा पिकनिक करना है, नदी में रोस्टिंग करना है, वहां चले जाएंगे। देन हाउ कैन योर बिजनेस वर्क? प्रिजर्वेटेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें हमारा स्पोर्ट्स टीच अस प्रिजर्वेटेंस। तो इसलिए आई टेल माय यूथ्स, प्लीज लर्न प्लम्बिंग वर्क्स, इलेक्ट्रिकल वायरिंग, मेसनरी वर्क्स, मतलब सीमेंट ये का गिट्टी पटल बालू का वर्क्स, ब्रिक्स वर्क्स, प्लम्बिंग, पेंटिंग, प्लीज लर्न। देयर इज लॉट ऑफ मनी इन दिस। मैं आपको एग्जांपल में बताऊं कि यहाँ एक तो मेरा ऑफिसर फ्रेंड है जिन्होंने 4 करोड़ भी एडवांस दिया है घर बनाने के लिए, बिकॉज वो कॉन्ट्रैक्टर मियाँ भले ही हो बट ही हैज अर्न्ड द रेपुटेशन, he has earned trust। तो हमारा यूथ भी ऐसा करना है। वही ऑफिसर अगर आप 10,000 भी उधार मांगने से शायद नहीं देंगे। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर रेपुटेशन, योर एक्सपीरियंस ऑफ अदर्स ऑन यू, कि हाउ यू हैव ट्रीटेड हिम, हाउ यू हैव बिहेव्ड विथ हिम। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर रेपुटेशन एंड योर डेडिकेशन, योर सिंसियरिटी। नेक्स्ट इज आई टेल इज honesty. Always remain honest. This is another area where God would be happy. If you are honest, then only God would be happy. आप तो सबको चला बेवकूफ बना के घूमते हैं, then you go to church tomorrow और या मंदिर tomorrow, मस्जिद tomorrow और बोलेंगे भगवान के मुझे माफ करो। Do you believe that God will forgive you? No यार। और ऐसा God जो forgive करते रहेगा, बदमाशों को परविश करते रहेगा, उस गोद को ही ऊपर वाला गोद उसको गोद से हटा देगा। फिर सीधा बोलता हूं, ऐसा गोद नहीं होगा। गॉड विल डू जस्टिस ओनली। और काइंडनेस का नाम में, फेवर के नाम में गॉड विल नॉट डू इनजस्टिस। ऐसा गॉड हम लोग नहीं चाहिए जो इनजस्टिस करे, सिर्फ प्रेयर फास्टिंग करने से माफ करे। ट्रू गॉड विल डू जस्टिस। उसको कोई प्रेयर फास्टिंग नहीं चाहिए, उसको कोई सोना चांदी का गिफ्ट नहीं चाहिए। अरे गॉड तो ह्यूमन बीइंग का फीलिंग से ऊपर है ना, वो तो ही विल डू ओनली जस्टिस। तो इसलिए ऑनेस्ट रहिए, एंड ऑनेस्टी गिव्स यू सेल्फ रेस्पेक्ट ऑल्सो। हमेशा ऑनेस्ट रहिए, तो आपको दुनिया जितना भी बोलो, दुनिया जितना फंसाने की कोशिश करो, यू विल कम आउट क्लीन। हमेशा ऑनेस्ट रहिए। एंड थर्ड इज आपका हेल्पफुलनेस। दूसरों को हेल्प करना है। जैसे मैंने बताया, एक रिडल्स में, एक लिटपुर पिजर में पूछा था कि 2 हाथ क्यों बनाए भगवान ने जबकि एक मुंह दिया है खाने के लिए। यानी कि आपका प्रोडक्शन ज्यादा, आप जो ज्यादा मेहनत करते हैं, जितना कमाते हैं उसका 1 भाग, मतलब 2 में से 1 भाग 50% दूसरों के लिए। ऐसे भी ये दुनिया में वी केम नेकेड, वी केम विदाउट एनीथिंग। व्हाटएवर वी आर हैविंग टुडे बिलोंग्स टू दिस सोसाइटी, दिस वर्ल्ड, नॉट टू अस। कल भी मैं चले जाऊंगा, ये शायद यूनिफॉर्म भी साथ में नहीं रहेंगी।
और घर सर जो बनाया वो तो बहुत दूर की बात है, वो तो साथ में जाएंगे ही नहीं। मेरा बच्चा लोग कभी कभी मजाक करते हैं, पापा इतना बड़ा बड़ा होटल है, इसको चाहिए, इसको ये किसका है? हम बोला है, अरे बनाने वाला को बनाने दो ना, बनाते रहने दो, बनाते रहने दो, क्योंकि वो कोई नहीं ले जाएगा। तुम अच्छा ऑफिसर बनाओ, बड़ा ऑफिसर बनो, थोड़ा पैसा कमाओ या कॉन्ट्रैक्टर बनाओ, एक दिन इसको खरीद लेना, बनाने का जरूरत नहीं है, ऐसा मजाक में बोलता हूँ। तो इसलिए आप लोग को भी मैं बोलता हूँ, जितना भी घर बनाने वाला को बनाने दो, बिल्डिंग बनाने वाला को बनाने दो, और मरने के बाद कहीं नहीं ले जाएगा, वो कहीं नहीं ले जाने वाला है, आपके लिए रख देगा। बस आप अगर खरीद सकते हैं तो खरीद लेना, आप मेहनत करो, ठीक है? ठीक है कि नहीं? उसके बाद ये आप अपना हेल्थ एंड फिटनेस मेंटेन किया, हार्ड वर्क किया, ऑनेस्ट रहा और दूसरों को हेल्प किया, दिस विल मेक यू हैप्पी। सबसे हैप्पीनेस का सोर्स आपका ट्रेवल करना नहीं है, शिलोंग जाना नहीं है और घूमना नहीं है और शाम को ड्रिंक करके पार्टी करना नहीं है। उससे जो हैप्पीनेस है वेरी शॉर्ट लिव्ड हैप्पीनेस, शॉर्ट टाइम के लिए हैप्पीनेस है। आपका 24 आवर्स 365 डेज आप हैप्पी रहना है। यू हैव टू मेंटेन ए गुड हेल्थ, जिससे आपको यू हैव ए फील गुड फैक्टर इनसाइड यू। उसके बाद आप हार्ड वर्क करना है, इट गिव्स यू रेस्पेक्ट, इट गिव यू सेटिस्फैक्शन। उसके बाद ऑनेस्ट रहना है, ऑब्वियसली इट गिव्स यू लॉट ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स ऑल्सो, दे विल गिव यू रेस्पेक्ट। उसके बाद आप दूसरों को जितना हेल्प करेगा यू फील वेरी हैप्पी, क्योंकि मैंने कुछ किया, आई हैव कंट्रीब्यूटेड समथिंग। दीज 4 A's गिव यू हैप्पीनेस। और आप हैप्पी रहा, यू विल बी हैंडसम, क्योंकि स्माइलिंग फेस इज ऑलवेज हैंडसम और ब्यूटीफुल। True beauty, true handsomeness comes from your happy mind, happy face. आप देखते होंगे कि किसी किसी का आंख बहुत सुंदर है, नाक बहुत सुंदर है, लंबा लंबा है, नाक भी, मुंह भी बहुत सुंदर है, बट ही इज ऑलवेज इन एंग्री मूड। जैसे कि अभी अभी लड़ाई करके आया है, या ही इज ऑलवेज इन अ सैड मूड, दुखी आत्मा होके घूमेंगे, लाइक इसका वाइफ कल मर गई या पापा मम्मी मर गए या बच्चे मर गए। ऐसा होने से कहां से सुंदर होगा? तो इसलिए एवरीबॉडी वांट्स टू बी हैप्पी एंड हैंडसम, है कि नहीं? है कि नहीं? तो हैप्पी एंड हैंडसम होने के लिए 4 A's करना है। आप अपना हेल्थ, स्पोर्ट्स अच्छा किसी का हेल्थ मेंटेन करो और हार्ड वर्क करो, ऑनेस्ट रहो और दूसरों को हेल्प करो। एंड लास्ट पॉइंट आई वुड लाइक टू टेल यू इज अबाउट गॉड एंड रिलीजन। आजकल इतना झगड़ा हो रहा है गॉड एंड रिलीजन के बारे में। डू यू बिलीव दैट गॉड इज सुप्रीम? डू यू बिलीव दैट गॉड इज सुप्रीम? अरे है तो है, बोलो गॉड इज सुप्रीम, isn't it? Everybody believes that God is supreme. है कि नहीं? है कि नहीं? अच्छा, if God is supreme in the universe, can there be 2, 4, 5, 6 supremes? होगा क्या? Supreme means only one. Supreme commander, supreme leader, supreme God will not allow any other supreme in this universe. If God is supreme, that means God is one. God must be one. Then why there are so many gods created by human beings? Why? जेसस बोलता है, अल्लाह बोलता है, राम बोलता है, रहीम बोलता है, और क्या क्या दुनिया भर का gods है created by human beings. So I always tell that in India we follow secularism. We all are secular. Secularism means equal respect, equal treatment of all religions without discrimination. लेकिन मैं तो उससे भी ऊपर सेकुलर हूं. I believe that not all religions, not all gods, but let us believe in only one religion and one God. Obviously, that is the fact. Instead of fighting among ourselves that my God is the real God, my religion is the best religion, your religion is Jhut-Mutka religion, your God is fake. Better let us believe that all religions are one, all gods are
one. Instead of fighting. Even if say कि Muslim Allah is the only true religion, तो मैं मुस्लिम भाइयों को बोलता हूँ, अच्छा अल्लाह अगर भगवान है, जो नॉन मुसलमान को कौन बनाया बताइए? क्योंकि God creates everyone. God creates everyone. Even the insects, the ants are also created by God. तो हमको किसने बनाया अगर हम अल्लाह का नहीं है तो? और सिमिलरली मैं जो क्रिश्चियन भाइयों को भी पूछता हूँ, अगर आपका जेसस इज द ओनली ट्रू रिलीजन और बोलता है कि जेसस तो एकदम सिर्फ क्रिश्चियन को देखता है और आप क्रिश्चियन में आना है अगर जेसस का प्यार चाहिए, तो अच्छा हमको पहले बताओ कि किसने बनाया? हु क्रिएटेड मी? मुझे बताओ। सिमिलरली हिंदू भाइयों को भी मैं बोलता हूँ, आप सोचते हैं कि हमको हिंदू बन जाओ, नहीं तो आपको हमारा राम लोग प्यार नहीं करेंगे, ऐसा अगर बोलते हैं तो मैं उनको बोलना चाहूंगा कि अच्छा मुझे किसने बनाया पहले तो बताओ। मुझे भी भगवान ने बनाया है, एंड दैट गॉड इज वन एंड ओनली वन। तो इसलिए आप लोग को मैं बोलता हूं कि डोंट फाइट ओवर रिलीजन। मैं तो आई फॉलो अपना अबोतानी का रिलीजन। दैट इज नॉट बिकॉज हम ये बिलीव नहीं करता है कि दिस इज द ओनली रिलीजन, वो बिलीव करके नहीं कर रहा हूं। मैं इसलिए बिलीव करता हूं कि आई रेस्पेक्ट अबोतानी, क्योंकि मैं अबोतानी का डिसेंडेंट हूं बोल के मैं आई रेस्पेक्ट अबोतानी। आई डोंट वांट टू इंसल्ट अबोतानी बाय कन्वर्टिंग टू अदर रिलीजन। सिर्फ उस वजह से मैं ऐसा फॉलो करता हूं, बट आई डोंट बिलीव इन दोन्यी पोलो ऑल्सो। कि दोन्यी पोलो तो एज पर साइंस दोन्यी पोलो तो एक सोलर सिस्टम का पार्ट है, बिकॉज व्हेन वी स्टडी साइंस वी शुड नो दैट ऑल्सो। तो इसलिए अपना सपड़ा में भी आप लोग फाइटिंग नहीं करना है। बस दोन्यी पोलो का ओनली ट्रूथ इज दैट दोन्यी पोलो इज द मदर एंड फादर ऑफ ऑल रिलीजन। वो इसलिए नहीं बोल रहे कि सबसे बेस्ट है, इसलिए बोल रहा हूं कि सब दुनिया में आप देखो, ऑल सिविलाइजेशंस इन द वर्ल्ड, जब पहले रिलीजन नहीं थे, व्हेन देयर वर नो गॉड, यानी कि जैसे जेसस नहीं थे, अल्लाह नहीं थे, राम लोग नहीं थे, तो किसने दुनिया को चलाया? दोन्यी पोलो को बिलीव करके चलाया सबने। मायान सिविलाइजेशन को देखो, आपने वो क्या फिल्म देखा होगा कि वहां पे सोलर इक्लिप्स हो गया तो वो एक आदमी को सेक्रीफाइस करना था, छोड़ दिया, अरे नहीं, ओ नाउ सन इज हैप्पी, सन इज हैप्पी, मतलब ऐसे ऐसे ब्लाइंड पेट होते थे सबका। तो आप इनका सिविलाइजेशन को देखो, अमेरिका का, यूरोप का, आप जितने भी सिविलाइजेशन है, पारोस बोलो, इजिप्शियन सिविलाइजेशंस, और हमारा मेसोपोटामियन सिविलाइजेशंस, हमारा जो हड़प्पन कल्चर, ये सब में सन एंड मून को ही लोग मानते थे। क्योंकि क्यों नहीं मानेंगे उस टाइम? क्योंकि जानते नहीं कि ये क्यों आ गया, इतना ऊपर से आके हमको लाइट देता है, हमको एनर्जी देता है, इसलिए उसको सोचते थे कि ये भगवान है। तो इसलिए लेट अस नॉट फाइट ऑन रिलीजन्स। मैं तो ऐसा बोलता हूं, मैं एक चर्च में एक बार आई वाज मेड चीफ गेस्ट, वहां पे मैं गया तो मैं स्पीच दिया। उसका बाद मैंने सबको पूछा, आप लोग क्यों चर्च में जाते हो? तो सब बोला कि वी वांट टू गो टू हेवन। सब बोला हेवन जाना है। और मैं इवन बाकी भाइयों को भी बोलता हूँ कि मुसलमान को पूछता है कि आप लोग इतना क्यों करता है? इन लोग बोलता है कि हमको तो क्या बोलते, इनका क्या बोलता है, जन्नत बोलता है, क्या जन्नत जाना है, मैंने कि हेवन जाना है। और हिंदू वालों भी बोलता है कि स्वर्ग जाना है, यानी कि हेवन जाना है। हम इनको बोला कि अरे यार आप लोग इतना सेल्फिश हो, बदमाश हो के भी आप लोग हेवन जाना चाहते हैं, कैसे होगा? मैं तो उसमें भी बोला, हे जेसस, मैं तो थोड़ा आई ट्राई टू बी ए वेरी गुड ह्यूमन बीइंग एंड पीपल नो दैट ऑल्सो। और मेरे लिए शायद सीट रिजर्व भी होगा आपने हेवन में, लेकिन मेरे पीछे अगर हमसे ज्यादा जो हेवन जाना चाहते हैं उनको प्लीज दे दो। हमसे ज्यादा गरीब वाला हेवन कोई जाना चाहते हैं उनको दे दो, मुझे हेवन नहीं चाहिए, हो जाएगा। आई एम नॉट दैट वेरी सेल्फिश कि साला उल्टा पुल्टा काम करते रहेगा और सब हेवन जाना चाहता है। यू आर करप्ट। आप इतना करप्ट है कि साला यहाँ इतना बदमाश करते हैं, यहाँ घूस दे के बिल लेते हैं, घूस दे के नौकरी लेने का कोशिश करता है।
और यहाँ बाकी को चीटिंग करके घूमता है और फिर भी आप हेवन जानना चाहते हैं, उससे ज्यादा करप्ट दिल वाला किसका होगा? तो इसलिए भगवान को भी आप लोग करप्ट मत कीजिए और खुद भी करप्ट मत होइए। मैंने उसमें जैसा को बोला मुझे हेल ही बेच दीजिएगा, अभी भी मैं बोल रहा हूं, आई एम नॉट वेरी सेल्फिश कि मैं सिर्फ हेवन जाएगा बोल के मजे से जिंदगी जीना है, ऐसे क्यों यार? अरे आप मेहनत करना पड़ेगा जिंदगी मजे से जीना है तो इसलिए मैं हेल ही जाऊंगा। लेकिन मैं ऐसा बोला मजाक में फिर कि बहुत लोग हेवन जाके पता चलेगा ओहो यहाँ तो आमो साहब नहीं है, आमो साहब जहाँ रहता है उधर ही जाएगा। मेरा दोस्त लोग बोलेगा आमो साहब तो मजे से मजाक उजाक करता है, इसलिए आमो साहब का साथ जाएगा। जैसा उसको बोलेगा सर हमको फिर अभी हेली भेज दो विदाउट दिए दिए ना, सेल्फ अपना रिक्वेस्ट है। अगर आपको कहीं ट्रांसफर पोस्टिंग होने से वो मतलब दिए दिए नहीं मिलता है सर्विस में भी, इसलिए मैं बोला उसमें। तो इसलिए लास्टली मैं ज्यादा लंबा बोल दिया बिकॉज इंपॉर्टेंट है बोल के। सो आई टेल यू प्लीज गिव इंपॉर्टेंस टू योर स्पोर्ट्स because a life dedicated to sports means you will live a life full of discipline, full of hard work, full of dedication, and that will certainly give you a very successful life. And stay away from drugs, stay away from too much of alcoholism, stay away from any kind of tobacco. आजकल तो बच्चे लोग क्या क्या लेते हैं हम समझ में नहीं रहते, सिगरेट पीते हैं और ऐसे स्टाइल ऐसे बिहेव करते हैं कि मतलब अंबानी से भी ज्यादा धनी है। दे बिहेव लाइक दैट। हम अभी मोबाइल पकड़ रहे थे अल्ट्रा 23 अभी तक तो 2023 का लिया वाला है, और एक तो है सैमसंग S10 2019 का 18 का, जब मैं SP कैपिटल था ना तब से मैं पकड़ के घूम रहा हूं। और आजकल छोटी छोटी लड़का लोग स्पेशली लड़की लोग खराब मत पाइए, हाँ चाची का बोल रहा हूँ। ओके आईफोन क्या है ना कुछ है ना, हाँ आईफोन 16 प्रो हो गया तो बोरिंग हो गया 17 लेगा, 17 लेने से ठाक करके सेल्फी लेके फोटो खींच के डालते रहते हैं और स्टेटस में और क्या में इंस्टाग्राम में फेसबुक में। मतलब इज इट गुड और व्हाट? आपकी इनकम यू डोंट हैव ए सैलरी ऑफ इवन 2 लाख रुपीस पर मंथ, बट यू वांट एवरी ईयर यू वांट न्यू आईफोन। हाउ कैन दैट बी पॉसिबल यार? इसलिए प्लीज स्टे अवे फ्रॉम ऑल दिस शो बिजनेस, ऑल दिस एक्टिंग बाजी। Be real, be practical in life. Earn your own thing. Don't act ultra rich. Act poor, then you will be rich. If you are earning 3 lakh rupees a month, like I am earning 3 lakh 67,000 month, I should spend only 1 lakh rupees and save remaining amount. हमारा लोग क्या करते हैं, पहले खर्चा करते हैं उसके बाद बसा कुसा को सेव करते हैं। डोंट डू दैट, सेव एंड देन स्पेंड। जितने भी आपको प्लानिंग करना है तो इन द लॉन्ग रन यू विल हैव एक्यूमुलेटेड ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, जिससे कि आप घर बना सकते हैं जैसे हम बना रहे हैं आजकल। क्योंकि आई हैव स्पेंड 31 years ऑफ सर्विस सेविंग मनी। अच्छा है कि नहीं? मैं तो जैकेट भी खरीदता हूं, मेरा कोई जैकेट है ना 2008 का भी जैकेट है जिसको अभी भी मैं पहनता हूं। और लेकिन लोग सोचते हैं कि सर का तो बहुत नया ही होता होगा, सर का तो बहुत कॉस्टली होता होगा। गुड ना क्योंकि आप ऐसे रहने से आपको मतलब इफ यू लिव ए लाइफ जहां में आपको शो करने का जरूरत नहीं है, लेकिन कोई ऐसा जीता है कि दे वांट टू शो, उसमें अननेसेसरी आपका मतलब लोन में डूब जाता है। एंड डोंट टेक लोन। लाइफ में लोन भी नहीं लेना है, इन द फ्यूचर के लिए भी आपको जरूरी है। तो अर्न एंड सेव मोर। वो जो आफ्टर से इन योर इनिशियल पीरियड लाइक 15-20 years
अब थोड़ा सा टफ लाइफ जीना है और ज्यादा वर्क हार्ड करना है, ज्यादा सेव करना है, एंड देन अनदर नेक्स्ट मतलब से आफ्टर 20 years 15 years आपका लाइफ और इजियर हो जाएगा, बिकॉज योर मनी earned and saved in 20 years will grow almost 5 times 6 times. तो बहुत काम का आता है. With this once again मैं आप लोग को एक बोलूंगा कि से नो टू ड्रग्स बोलने से आप लोग साथ दीजिएगा, ठीक है. उसका बाद एक तो मैं बोलूंगा कि आप डोंट बी टू सेल्फिश टू गो टू हेवन, ठीक है. आप यहाँ अच्छे से काम करो, ऑनेस्ट रहो, हार्ड वर्क करो, दूसरों का हेल्प करो, तो ऐसे हेवन अपना पक्का है. आप ज्यादा इधर उधर पढ़िया पर्ची करने का जरूरत नहीं है, ज्यादा सोना चांदी का गिफ्ट, मनी का गिफ्ट और ये क्या बोलते हैं वो दूध सूद चढ़ाने का जरूरत नहीं है. मैं आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल रिलीजन्स कि सब ये नाटकबाजी अपना पैदा के लिए सब गुरुओं ने बनाया होगा, रिलीजियस लीडर्स लोगों ने उनका एडवांटेज के लिए. दीज आर सब ड्रामाबाजी है. ओनली फॉलो ओनली वन रिलीजन. सेक्युलरिज्म मीन्स वन रिलीजन होना है, मतलब नॉट स्टेट रिलीजन बट ओनली वन सुप्रीम गॉड, बिकॉज ऑल रिलीजन्स आर बेस्ड ऑन सम गॉड. तो बोलना है कि गॉड इज ओनली वन. तो से नो टू ड्रग्स बोलिए आप लोग भी. से नो टू ड्रग्स. Stay honest. Stay away from corruption. Alcoholism तो थोड़ा कम होगा. Anyway, thank you for giving me this wonderful opportunity to speak